लोग का जंतर मंतर आंदोलन करने के लिए आया था। हम लोग का सब यहाँ पर सब लोग का अरेस्ट करके हम लोग अंदर करके रखा है। हम लोग का हड़ताल फिर भी सब जगह चलता रहेगा, चलेगा रहेगा जब तक हम लोग का ड्राइवर ड्राइवर आयोग का मिल रही तक हम लोग का चलता रहेगा। सर एक बात आपसे आप लोग से ये जानना चाहते हैं कि सर ये भारतीय ड्राइवर की आवाज क्या सरकार सुनेगी, इस विषय में आप बताएंगे सर। तमिल में நமஸ்காரம். நான் பஸ் சொல்றேன். இன்னைக்கு 26/2/2024 தேதி வந்து டெல்லி ஜங்கர் மந்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஆல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து யூனியன்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய மாநிலங்கள்ல இருந்து தலைமை பொறுப்பாளர் வந்திருக்காங்க. தமிழ்நாடு வந்திருக்காங்க, பீகார் இருக்காங்க, ஒடிசா இருக்கிறாங்க, வெஸ்ட் பெங்கால் வந்திருக்காங்க. இது போல இங்கே மட்டுமே ஒரு 6 மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சங்கத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பாளர்கள் இந்த மண்டபத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மற்ற பஸ்ஸில் ஏற்றப்பட்ட நபர்கள் எல்லாமே வெவ்வேறு இடங்களில் அடைக்கப்பட்டு வச்சிருக்காங்க. இது நம்ம ஓட்டுநர்களுடைய உரிமைக்காக வேண்டி டெல்லி ஜங்கர் மந்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நம்ம இந்த தேதியில் வந்து நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். இதில் இந்த ஹிட் அண்ட் ரன் சட்ட திருத்தம் இதையும் வந்து நம்ம முழுமையாக ரத்து செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம். இதை வந்து 24ஆம் தேதி என்று நமக்கு தெரியப்படுத்தியிருந்தார்கள். அமித்ஷாஜி வந்து இந்த 24ஆம் தேதி அன்றைக்கு ஹிட் அண்ட் ரன் சட்டத்திட்டத்தை நாம் நிறுத்தி வைத்து விட்டோம் என்று அந்த இதை விட்டுவிட்டு மற்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 வகையான கோரிக்கைகளை அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சங்கங்களும் ஒருங்கிணைந்து அதற்கான இதை கையில் எடுத்திருக்கோம். கையில் எடுத்து இன்றைக்கு போராட்டத்துக்கு செல்லும் பொழுது அந்த ஜங்கர்மந்த் போராட்டத்திலே நுழைவு வாயிலேயே ப்ரீபென்ஸ் அரெஸ்ட், அதாவது எந்த ஒரு கோஷங்களும் போட விடாமல் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டோம். கைது செய்யப்பட்டதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 பஸ் மொத்தம் 6 பஸ் கைது செய்யப்பட்டது. அந்த 6 பஸ்ல இருக்கக்கூடிய நபர்கள்ல ஒரு பஸ்ல வந்த நபர்கள் மட்டும் இங்க நாங்க எல்லாமே இருக்கிறோம். மற்ற பஸ்கள் எல்லாமே மற்ற ஏரியாக்கள்ல தங்க வச்சிருக்காங்க. இது எவ்வளவு அடக்குமுறைகளை மத்திய அரசும் காவல்துறையும் நம்ம மீது எடுத்தாலும் நம்முடைய ஓட்டுநர்களுடைய உரிமைக்காக வேண்டி இந்திய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டுநர் சங்கங்கள் அனைத்து ஒருங்கிணைந்து தொடர்ச்சியாக இந்த போராட்டங்களை செய்து கொண்டே இருப்போம். ஓட்டுநர் உரிமைக்காக அனைவருக்கும் वीडियो को रखिए और एक एक आदमी अपना சமூக நீதி அனைத்து வாகன ஓட்டுநர்கள் தொழிற்சங்கம் மாநில தலைவர் கே பத்மராஜ். நன்றி. एक एक करके सारे लोग आप अपना नाम बताइए सर। जय हिंद जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से उपचंद मध्य प्रदेश से जिला अध्यक्ष हूँ मैं। जैसे आज जंतर मंतर पे पहुंचे तो जो सरकार जो हमारे साथ में ये रवैया कर रही है बहुत गलत कर रही है। आने वाला जो इलेक्शन है इनको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि छोटा छोटा क्लिप बोलिए और आप उनको भी एक टाइम दीजिए। क्या नाम जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है। जो उनको भी एक लोगों को बोलने का एक लोगों को मौका नहीं। सर बोलिए। हाँ, तो ये जो ड्राइवर साहब समाज के साथ में जो बहुत गलत हो रहा है। आज हम आए थे हमारे जंतर मंतर पे, परमिशन ली थी उसको भी रिजेक्ट कर दी। जो हमने परमिशन ली थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया और परमिशन की वहाँ से जंतर मंतर से उठा के लाके यहाँ जेल में छोड़ दिया। क्या आप ये सरकार कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर रही है कि आपको महसूस हो रहा है क्या? बहुत गलत हो रहा है कि आज ये 22 करोड़ का ड्राइवर परिवार के साथ में बहुत गलत हो रहा है ये चीजें। हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं ना। ड्राइवर परिचय दीजिए, कहाँ से आप कहाँ से आए हैं? मैं उज्जैन से हूँ, मध्य प्रदेश से, जिला अध्यक्ष ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से। नाम क्या है सर? दिनेश परिहार। आप उनको सर ये आपका नाम बताइए सर। नमस्कार जी, मैं सतपाल सिंह हूँ, हिमाचल से। आजाद टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का प्रधान हूँ जी। हम ड्राइवर समाज के लिए चिंतित थे, दुखी थे। तो हम दुखी हृदय से यहाँ आए थे कि सरकार के पास जाएं और उनसे कुछ जोड़ी में हम ड्राइवरों के लिए डलवाएं। लेकिन हमें खुशी है कि हम अपने ड्राइवरों के लिए आज गिरफ्तारी दी है और ये हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमारे हक नहीं मिलते। धन्यवाद। जय हिंद। सर अपना नाम बताइए। आप जो है अच्छा एक बात है, आपके काला कानून को तत्काल रोक लगा दिया गया है, मगर ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग और कहीं ना कहीं ड्राइवर को लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है। ये भारत सरकार भी जान रहा है। इस विषय में आप बताइए सर, क्या बोलना चाहेंगे? इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो कानून है, कानून तो पहले भी था, इसको सख्त कर दिया गया है, इसको नरम किया जाए और ड्राइवरों की सुरक्षा जो है बढ़ाई जाए। जब ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर कभी भी नहीं चाहता कि मेरे नीचे चीटी भी हो, लेकिन चलो अनजाने में या गलती से जैसे भी एक्सीडेंट होता है, तो अगर ये कानून सख्त बन जाए कि ड्राइवर को कोई हाथ नहीं लगाएगा तो ड्राइवर बाकायदा उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाएगा और वो आदमी बच जाएगा। तो ये कानून जो है सरकार को ये कानून भी बनाना चाहिए। और सबसे जो मेन चीज़ है हमारी अपना ड्राइवर योग, जिससे हमारे ड्राइवरों के हक मिलेंगे। जो छोटे छोटे हमारे हक है ड्राइवरों के, जैसे सैलरी का है या और कोई कई चीज़ें हैं जो ड्राइवरों को नहीं मिल रही हैं, इसके लिए हम सरकार से बेनती भी करते हैं और उसके लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे। जय साहब। सर अपना नाम बताइए। सर मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ गुरतेज सिंह विभाग
अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। सर मैं गुरतेज सिंह बिवाल जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिरसा हरियाणा से। थोड़ी आवाज में बुलंदी। और साथियों आज हमारी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की और हम अन्यथा पूरे ड्राइवर समाज के जितने भी हमारे संगठन पूरी इंडिया के अंदर चले हुए हैं, सभी हम आज हमारी कॉल थी कि 26 फरवरी को पूरा ड्राइवर समाज जंतर मंतर पर इकट्ठा होना और हमारी परमिशन भी लेके थी और ये सरकारों ने हमारी परमिशन को रद्द करके और जितना भी हमारा ड्राइवर समाज यहाँ पे जंतर मंतर पे पहुँचा उनको सरकार ने तानाशाही करके अरेस्ट करके उनको आज जेल के अंदर डाला गया जी। हमारे बहुत से कार्यकर्ता जो कि आज हमारे जेल के अंदर हैं और ये हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि सरकार को ये चीज़ों को अगर नहीं मानती, हमारा ड्राइवर दिवस और जो ड्राइवर बीमा है जो कि हमारा जो 60 साल की उम्र के अंदर हमारा ड्राइवर समाज है जो सेवा करते करते मैं 10,000 रुपया उनकी पेंशन मांगी गई है। सर ये बहुत से हमारे 29 मांगों को लेकर हम चल रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द अगर 29 मांगे नहीं पूरी हुई तो ड्राइवर समाज आगे आंदोलन के लिए ऐसे ही अड़ा रहेगा, ऐसे ही डटा रहेगा। ना तो कभी ड्राइवर डरा है और ना ही डरने वाला। अच्छा, एक बात और आपसे हम पूछना चाहते हैं सर कि ये ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड ड्राइवर आयोग, इससे क्या ड्राइवर भारतीय ड्राइवर को क्या सुविधा मिलेगा? सर सुविधा ये है कि ड्राइवर को आए दिन देख रहे होंगे, आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से लूटा पिटा जा रहा है, चाहे वो चोरी टुकेरी के माध्यम से है। अब आप देख रहे हो 24 घंटे गाड़ी चलाने के बावजूद ड्राइवर अपनी नींद पूरी करे, अपना आराम करे, जब वो चोरों को लुटेरों को देखे अपना तेल निकल जाता है, कई गाड़ी के टायर चोरी हो जाते हैं, कोई कुछ चोरी कर लेता है, ड्राइवर कहाँ सेफ है? आप सरकारें कह रही है और सभी आज हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि ड्राइवरों का हमें बहुत अफसोस है, जो हमें चिंतित हैं ड्राइवर समाज को लेके। और ड्राइवर समाज को इन्होंने एक बहुत बड़ा दर्जा दिया। आज के दिन 3 ही सोल्जर है यहाँ पर इंडिया के अंदर। पहला जो सोल्जर है हमारा फौजी वीर, और दूसरा सोल्जर है किसान, और तीसरा सोल्जर ड्राइवर समाज। ये तीनों सोल्जरों को कितना आज दुख उठाना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और लेकिन तानाशाही सरकार है जो धक्के से ड्राइवर समाज पे ये रोक लगा के इनको अंदर डाला जा रहा है। लेकिन ये ड्राइवर समाज डरने वाला नहीं है, ना ही रुकने। चलिए सर, ये आप अपना परिचय बताइए। बोलिए ना, वीडियो लंबा होने से टेंशन नहीं, लंबा रहेगा चलेगा। हाँ मैं काट लूँ, लंबा होने से कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। में अभी मीटिंग होता था, उधर से पुलिस ने हमको पकड़ के जी थोड़ा आवाज़ बुलंद बोलिए। उधर जेल पे डाल दिया है। हम ड्राइवर भाई के लिए सबके लिए हम मीटिंग बनवाता। वो हमारा ड्राइवर है ना, वो रास्ते पे गाड़ी चलता है तो ड्राइवर सब क्या है ना, उनको घर पे वो चूल्हे जलता है, उनको खाने का नहीं मिलता है ना, वो गाड़ी चलाने के बाद उनका घर चलता है। जी जी, वो ड्राइवर लोग के लिए वो सब ये कई वरना है, वो मिलना चाहिए पक्का हमारा ऐसा। आप कहाँ से हैं? थोड़ा आप अपना राज्य का नाम बताइए और कौन सा एसोसिएशन? कोल्हापुर जिला हथकंड तालुका मुकाम पोस्ट होपरे। जी जी, अब आप भी कुछ विचार रखते हैं? अच्छा, जय हिंद जय भारत। एक मिनट, जी, और भी कोई बोलने वाला है? यहाँ जाइए ना, बाजू में बैठिए जिनको बोलना है। मैं बोलने वाले जसवीर गांव डाबी कला। अच्छा एक मिनट हाँ अच्छा सर, ये बताइए कि आपसे कुछ जानकारी लेनी थी जो आपको जंतर मंतर पे अरेस्ट कर लिया गया है। क्या आपको सर ये अरेस्ट होने से भारतीय ड्राइवर की मौलिक अधिकार के लिए आए थे और कहाँ से आए हैं? और इन पहले अपना परिचय दीजिए सर। जय हिंद जय भारत। मैं जसवीर गांव डाबी कला, तहसील भट्टो, जिला फतेहाबाद, हरियाणा प्रदेश से सभी मेरे ड्राइवर समाज का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमारा ड्राइवर समाज यहाँ इतना नहीं है, पूरे भारत में बहुत करोड़ों की गिनतियों में आता है। और फिर भी हमारा कई ड्राइवर लोग ऐसे सोचते हैं कि जंतर मंतर में जाने से वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये एक थोड़ी सी हमारे ड्राइवर भाइयों की थोड़ी भूल है। जंतर मंतर पे कुछ नहीं होता है। जंतर मंतर पे जैसे हम बैठे हैं, सभी एक साथ बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे को मोदी सरकार ने ऊपर से आदेश कर दिया कि इन ड्राइवरों को जंतर मंतर पे नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि अगर ड्राइवर जंतर मंतर पे पहुंचेगा तो पूरे देश में बात पहुंचेगी, पूरे देश में पहुंचेगी तो विदेशों में पहुंचेगी। विदेशों में पहुंचने से मोदी सरकार को पूरा खतरा है। हमारी आवाज़ से, ड्राइवरों की आवाज़ से एक छोटी सी बात बोलता हूँ मैं सभी ड्राइवर भाइयों को और मेरे पूरे देशवासियों को, क्या मोदी सरकार को 3 दिन में ही हमारे ड्राइवर का आंदोलन ज़्यादा मजबूत दिख गया था क्या? 3 दिन में उन्होंने हमारी शर्त जो ये कानून टेंडर का जो कानून लेके आई थी मोदी सरकार, वो 3 दिनों में मान लिया। और किसान तो 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे, उनकी तो 1.5 साल में नहीं सुनाई हुई और हमारी 3 दिनों में होगी। वाह जी वाह, मोदी जी बहुत अच्छी गोली देते हो ड्राइवरों को और हमारे देश को। क्यों? क्योंकि डरती है मोदी सरकार हमारे ड्राइवर भाई से, कि ड्राइवर भाई एक ऐसी चीज़ है कि मोदी सरकार को गिरा सकता है।
अगर हमारा आंदोलन चल जाता 5-10 दिन और, तो मोदी सरकार हमारे देश से ही चली जाती। हम ये दावे के साथ कहते हैं। अभी हमारे 3 दिनों में ही आंदोलन के हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि ड्राइवर का हम ये कानून नहीं लागू करेंगे। अरे तो इलेक्शन बाद में कर देंगे, वो तो उनको क्या है, कोई लिखित में तो हमारे को दिया नहीं। ये लिखित में दिया है कि ये हम रद्द कर रहे हैं, ये लिखित में देते हैं। और जो हमारी 29 मांगे है भारत सरकार से, वो उन पे क्यों नहीं गौर कर रही? एक हमारे लिए एक ही मांग पूरी कर रहे हैं वो 29 में से, जो कि पार्किंगें बनाएंगे 1000 पार्किंगें। क्या ड्राइवरों के हाथ पैर नहीं दिखते उनको जो एक्सीडेंटों में कट जाते हैं? कि पार्किंग की जो ये बात ही कर रहे हैं केंद्र सरकार की, आपको यकीन है कि वो सख्त में लागू करेंगे? सर करेंगे वो, करेंगे वो, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में पाछे उसके बाद में क्या रह जाता है, मेरे को ये बताओ ना आप। सबसे पहली बात तो हम बताना चाहेंगे, ये ड्राइवर आयोग जरूरी है कि शौचालय जरूरी है? सर सबसे ज्यादा तो दोनों ही चीजें जरूरी है। ड्राइवर योग भी जरूरी है, शौचालय भी जरूरी है। और अकेले शौचालय से हमारा क्या होगा? ड्राइवरों के हाथ पैर कट जाते हैं एक्सीडेंटों में, क्या वो भारत सरकार को नहीं दिखाई देता क्या? उसके बच्चे रोड पे आ जाते हैं, वो नहीं दिखाई देता क्या? हमारे खुद मेरे एक साथ में 2012 में एक्सीडेंट हुआ था। इस भारत सरकार ने मेरे को तो 1 रुपया भी नहीं दिया। 4.5 लाख रुपए में मैं खड़ा हुआ हूँ रोड पे, समझे, और फिर भी देश के लिए काम कर रहा हूँ। क्या हमारी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है? और हमारे देश के अंदर कोरोना महाकाल जितना बहुत बुरा एक बीमारी आई थी कोरोना की, उसमें हमारे ड्राइवरों को क्यों नहीं कहीं भी सम्मानित के लिए नाम लिया गया? ये क्यों नहीं होता हमारे देश में? क्योंकि हमारा ड्राइवर एक पढ़ा लिखा नहीं होता, इसीलिए। अच्छा, एक बात और जानकारी लेना है सर कि ये ड्राइवर का जो कॉम है भारत में, ये बहुत बड़ा कॉम है। और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार को इतना टैक्स मिलता होगा कि भारत का अच्छा से अच्छा अर्थव्यवस्था अच्छा बन सकता है, मगर ड्राइवर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? भारत देश जो चलता है वो ड्राइवर के हिसाब से चलता है, क्योंकि इसका जो टैक्स जा रहा है ना, उससे हमारे देश को पूरे को बजट में बहुत पैसा मिलता है। जितना टैक्स हमारा ट्रांसपोर्ट नगर भरता है, हमारे जितने ड्राइवर भाई है, हर के ऊपर टैक्स लगता है। तो कार वालों के ऊपर भी लगता है, बाइक के ऊपर भी लगता है, हर जो भी चीज़ खरीदोगे उसके ऊपर टैक्स लगे। पूरा भारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही चलता है, आप सभी को पता है। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आसाम से सर अपना पहले परिचय बताइए। मेरा परिचय, मैं प्रकाश कुमार सिंह हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि निजामुद्दीन जी और विनोद तिवारी जी आसाम से आए हैं, इन लोगों की डिबेट आप लें। अच्छा सर, ये पहले आप अपना परिचय बताइए, कौन सा एसोसिएशन से हैं, कहाँ से आए हैं, किस राज्य से हैं? मैं मोहम्मद निजामुद्दीन, मैं स्टेट आसाम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। अब मैं कुछ हट के बोलना चाहूँगा। मैं कुछ हट के, हमें शौचालय सबसे पहले नहीं चाहिए। जो सरकार हमें शौचालय का झांसा दे रहा है, हमें शौचालय नहीं चाहिए। हमें चाहिए ड्राइवर आयोग, जिसमें कुछ हट के, कुछ ऐसे ऐसे राज्य है ड्राइवर के साथ में इतनी अत्याचार होता है कि जो बोलने से रुआ खड़ा हो जाता है। तो भारत का 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक प्रदेश का मैं नाम लेना चाहूँगा, मणिपुर स्टेट। आप सबको ताज्जुब होगा, जो भी ड्राइवर मणिपुर गया होगा उसको 100% जानकारी होगा। मणिपुर जो माओ बॉर्डर से लेके इम्फाल खाली करके आने तक 12 टायर गाड़ी का 1,10,000 रुपये खर्चा आता है। और 1,10,000 खर्चा में खाली 20,000 रुपये का तेल लगता है, और 20,000 का तेल और 90,000 रुपया ये जो गुंडा टैक्स देना पड़ता है, उग्रवाद। सरकार को ड्राइवर के ऊपर काला कानून नहीं लाके मेरे हिसाब से लाना चाहिए था। जो कुछ स्टेटों में जो उग्रवादियां ड्राइवर के ऊपर इतना बुरी तरह से अत्याचार कर रहे हैं। मैं आज बैनर के साथ आया था, एक ड्राइवर को 200 रुपया कम था गेट में, उस गेट में 1800 रुपया देना पड़ता है। 1800 रुपया में वो अगला का पास 1600 रुपया था। 200 रुपया का चलते उसका पिछवाड़ा पूरे बेकार कर दिया। फिर इतना पीटा, वो आज का दिन भी 16 तारीख से लेके 16 फरवरी से लेकर आज का दिन भी हॉस्पिटल में है वो ड्राइवर। और उसका चलते 18 फरवरी से मणिपुर अनिश्चित काल के लिए बंद चल रहा है। ड्राइवर समाज ने बंद करके रखा है। आज हम लोग जंतर मंतर से देश का प्रधानमंत्री, परिवहन मंत्री, गृह मंत्री, उनको एक मैसेज देना था, राष्ट्रपति जी को एक मैसेज देना था हम सबको मणिपुर को लेके। मैं खास करके मणिपुर के विषय का ही बोलने के लिए आया।